राजीव, अरे आइए आइए। मैंने आते से बोला कि यार क्या हैंडसम तुम्हारा डायरेक्टर है यार ये। माइक है प्लीज। ओह क्या बात है सर, ऐसा नहीं, आपके फैन है सर यहाँ पे बहुत सारे। मैं कहता हूँ मजाक समझ रहे थे। ओके राजीव, जैसे कि टीजर के पहली बात तो ये होता है क्या कॉन्सेप्ट क्या था यार, सब रिवर्स में चल रहा था पूरा, क्या कॉन्सेप्ट था वो? कॉन्सेप्ट ये था कि आप मुझे से सवाल पूछें। ओके क्या था कॉन्सेप्ट? तो आप सक्सेसफुल रहे, आप सफल रहे। बिल्कुल ओके एग्जैक्टली, सो इट वाज जस्ट टू क्रिएट एन इंट्रीग, it was to create an intrigue to for you to think that something to do with the film. Okay, lovely. Now, जी okay, hello everybody and thank you so much for coming firstly. So the idea of the teaser was to create curiosity, and I think we've been reasonably successful in doing that. And I think I don't want to reveal more about exactly why everything is going in reverse. I think that let the film say that, but नहीं पर कुछ ज़्यादा ही आप लोग सक्सेसफुल हो गए, क्योंकि रेडियो फीवर 104 एफएम मैंने कम से कम 4 या 6 बार उसको बात किया उस बारे में कि ऐसा क्या हो सकता है, आप लोग को क्या लगता है? तो सब ने कहा कि इसमें सस्पेंस हो सकता है, कई लोगों ने कहा थ्रिल हो सकता है, उसके बारे में बात करूंगा। लेकिन ये दो हीरोइनें नज़र आ रही, देखिए राजीव अपने मोहल्ले का एंड गौहर को कौन नहीं जानता है, हाँ. दो हीरोइनें, ये कहाँ से लेके आए आप? ये यहीं कहीं थी, मुझे थोड़ी देर से मिली है. ऐसा ऐसा एक का नाम है जेमा एटकिंसन, ओके and I was let me tell you briefly about how the film happened and all that, a little very briefly for everyone to know. um, well, like going from the teaser, and जो teaser की बात करें अनुराग, जो आप लोग का question कि why everything going in reverse. So going back that Fever was conceived when I was very young, about 7-8 years old, and when my father spoke about Ian Flemings and Alfred Hitchcock, and that's what Fever is all about, and it's all about childhood fantasies coming true of how we are fascinated with James Bond and Hitchcockian suspense and stuff like that, and Bond, I think, is incomplete without hot women. It kind of the romanticizing of how do are involved with hot babes. And Gemma is when I kind of looked at her work, and she's done a few Hollywood films and films in Europe. She embodies hotness, if I can say that, and people who have kind of seen her would agree with that. And to add to the fact that I'm a big fan of football, and she is Ronaldo's ex-girlfriend, so that was how I started knowing about her. यो आई थिंक जलन थी आपको रोनाल्डो से। सिंपल क्यों नहीं बोलते यार, खत्म करो ना। ओके Yeah. Okay, and then I think the film would have been incomplete with actually a Bond girl in the film. Is a character when a spy, for a spy, the ultimate romance is to romance a Bond girl. There cannot be a bigger romance for a spy or an assassin. And that's when I kind of started searching for somebody who can really play that and embody that. And then I found Katrina, and I wrote to her, and I sent her the script, and she was gracious enough to accept it and be a part of it. And during the making of the film, I actually became I lived the life that I'm trying to portray on screen. I went to Monte Carlo, which is a quintessential Bond location. All films of Bond have Monte Carlo. So I went to Monte Carlo, and I met Katrina there. And I told her about what it is about, and she was very excited, and she came on board. So the film was complete, that here is an assassin who is romancing a Bond girl. It kind of completes the genre for me. ओके आई थिंक आपके पास कुछ इनके बारे में मैसेज है? So since they had some commitments and both are shooting in Europe, so let them say something about the film and about us, and that would be, I think, very good. चलिए, Can we have the AV, right? क्या बात, जोरदार ताली होनी चाहिए, क्योंकि देखिए ऐसा है कि हमारे हिंदुस्तान की फिल्मों को प्रमोट करने वाले आजकल बहुत कम लोग रह गए हैं। लोग चाकू छुरी तलवार लेके घूम रहे हैं, है ना, मार्केट में, लेकिन आप लोग इस फिल्म को प्रमोट कर रहे हैं। और बस सबसे पहले पूछना चाहूँगा फीवर। वेल मेरा एसोसिएशन फीवर से इस वजह से है क्योंकि मैं अपने अजय भाई को जानता हूँ एंड राजीव को जानता हूँ, एंड दे हैव बीन वेरी क्लोज एंड दे हैव फ्रेंड्स फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। और जब भी ये कभी भी इन्वॉल्व होते हैं किसी चीज़ के अंदर, आई नो दैट दे पुट इन देयर हार्ट एंड सोल इनटू इट। और मैंने ये फिल्म देखी है
बहुत अच्छी फिल्म है, बड़ी इंटरेस्टिंग फिल्म है, वेरी वेल शॉट, वेरी वेल मेड, बहुत प्यार से, बहुत एफर्ट से फिल्म बनाई है. परफॉर्मेंस अच्छा है, स्क्रिप्ट अच्छी है, इट्स लिटिल डिफरेंट, पीपल विल एंजॉय वॉचिंग दिस फिल्म. एंड ऐसे मौके पे आई फील मोर देन हैप्पी टू कम एंड गिव एनी काइंड ऑफ सपोर्ट एंड एनकरेजमेंट, और आई एम हैप्पी कि आप लोग इतनी तादाद में आए हैं इधर. Thank you very much. It's wonderful to have you people out here, and we just hope that the message of this film, in terms of how good it is and entertaining it, just reaches to a larger audience. So thank you very much, everyone. Thank you. सोहेल. मैं तो यही कहता हूँ कि आजकल तो अगर आपको प्रमोट करना है तो there is nothing better than having friends for you. And I mean, we are so glad because as Bhai said that एक हमारी जो journey है, that we've grown up with friends, and we all make films. I was very surprised that a production like this, when I was watching, have gone and shot the film in Switzerland, in Zurich, have got an international star cast. It's that it's commendable that in today's time that this team can pull something like this off. I've always been a Rajiv Khandelwal fan. I saw his first film. His first film was made by Rajkumar Gupta, sorry, and Amir. And I remember seeing the film. In fact, Vikas Bahl, a friend of mine, a very dear common friend of mine, showed us the film together. And from that time, I thought he was an extremely competent actor. He's an extremely good-looking boy. And from the sincerity of my heart, I wish that he deserves the success that he gets with Fever. It's a film that a team has put together. They've worked very hard. I've been through the journey of this film. So I know that to make this kind of film, to come out of this kind of film, and to have, and you know what surprises me? I didn't realize my repeat aapki taraf thi, but I'm so glad that how we as friends have been here. You as the media have come to support a film like this because एक आपका सपोर्ट है और एक पराज अंकल का सपोर्ट है. अगर पराज अंकल का सपोर्ट है तो यू कैन गेट अ लॉट ऑफ मीडिया अटेंशन, या फिर अगर आपका सपोर्ट है यू कैन गेट अ लॉट ऑफ मीडिया अटेंशन. मैंने इसीलिए कहा ना, तलवार कैची लेके सब खड़े हुए हैं आजकल. So I'm really glad that for a film like this, all you boys are here, girls and boys, sorry, all you guys here to support the film because media के through ही awareness होती है. And I have, मैं ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता, लेकिन during this journey, I had gone to visit Ajay to his office. मैं ऐसे ही बैठा था and he was watching the rushes. So I started watching the film. थोड़ा बहुत मैंने देखा, फिर ऐसे थोड़ा और दिखा दे, थोड़ा बहुत मैंने और देख लिया. And I found the film very interesting. It's got a unique screenplay. It's a thriller. और हर चीज़ में अगर कोई thrill होती है, जैसे कि अगर एक love story में एक thrill होती है, I think कुछ कुछ होता है was one of the most thrilling love stories. क्योंकि first Rani dies, and then you've got 7 letters, then Kajol comes back into his life. So every film which has a thrilling moment, it can be a love story, it can be a murder mystery, it can be a social film, I think keeps the intrigue of the audience. And this film has managed to do that. So I wish them all the best, and I hope that this film reaches a vaster audience thanks to the media, and appreciate all you guys being here. Thank you. अजय जी शुरू करें, प्रोमो दिखाएं सबको. पहले बात तो अजय को बुलाते, जो मेन आदमी जिसकी Please. वजह से हम सब यहाँ आए. अजय कम, एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए अजय के लिए. That's Mr. Ajay. He's the producer of the film and the man behind Fever. Ajay would like to say something. I would like to call a few of my associates also, people who have supported for this movie. Mr. Manjunath, please come. Karan ji, Please come. Ravi ji. Manik. पहले ना ये अनुराग आपने बोला स्टेज पे आने के लिए, ये पहला स्टेज है जमीन से नीचे है. ओके, थैंक यू गाइस, बहुत बहुत आइए प्रोमो देखते हैं, ट्रेलर देखते हैं. Congrats, yeah, the team. It's looking very nice. And जो मैंने film देखी है, it's on that mold, it's on that flavor. So, best. I think that this film's got all the elements that we require for a successful commercial film. I think let me first get my hero and my heroine on the stage to kind of made it come alive, and
So can Rajiv Khandelwal please come here? जोरदार तालियां होनी चाहिए। राजीव खंडेलवाल, And गौहर खान, where is Gauhar? प्लीज कम ऑन द स्टेज। जोरदार तालियों के साथ। जावेद साहब कैसा लगा ओवरऑल? प्लीज। इट्स ग्रेट ट्रेलर आ रहा है, जैसे अरबाज एंड सोहेल ने कहा, इट्स फैंटास्टिक। और जिस तादाद में लोग आए, इट्स क्वाइट अमेजिंग। इट्स नॉट टेक्निकली अ बिग फिल्म, जैसे हम कहते हैं कि बहुत बड़ा प्रोडक्शन और बड़े स्टार कास्ट, लेकिन ये बहुत एनकरेजिंग है दैट दीस पीपल हैव कम। नो नो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, नहीं किस द कास्ट। थैंक यू जावेद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड आई थिंक आज जितने लोग यहाँ पर आए हैं वाकई बहुत तादाद में हैं। राजीव गौर, कंग्रेचुलेशंस, बधाई हो। ये फिल्म अपने आप में बहुत ही यूनिक और बहुत ही अलग नज़र आ रही है। तो राजीव, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, फीवर फिल्म का नाम क्यों है यार? सबसे पहले तो ये बताओ। मैंने भी ये सवाल राजीव से पूछा था जब ये लेके आया था। मैंने कहा फीवर क्यों है, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी लाइन कही थी उस समय। जो लाइन उनकी नहीं थी, उन्होंने कोट की थी कहीं से, दैट फीवर इज एन एक्सप्रेशन ऑफ इनर रेज, व्हिच इज सो ट्रू। बहुत बढ़िया। इज द एंग्स्ट विद इन। सो बेसिकली फीवर का मतलब वहाँ से शुरू हुआ था, और सिर्फ नाम रखने के लिए नाम नहीं रखा था, उसके पीछे पूरा एक स्टोरी है। यू नो, यू विल अंडरस्टैंड व्हेन वी सी द फिल्म, बट इट इज़ अ वेरी एप्ट टाइटल फॉर द फिल्म। एंड आगे बढ़ने से पहले मैं एक दो बातें बोलना चाहता हूँ कि आई एम वेरी हैप्पी दैट अरबाज भाई एंड सोहेल भाई दे आर हियर। यू नो, हमारी इंडस्ट्री में वी हैव ऑल काइंड्स ऑफ पीपल लाइक एनी अदर इंडस्ट्री, बट these two guys, I think, as far as I am concerned, मुझे लगता है बहुत ही बड़े दिल वाले लोग हैं। I think it runs in their family. From the day I entered, I did my first pilot. मैं जब बॉम्बे में आया था तो मैंने अरबाज भाई के साथ में एक पायलट शूट किया था जो कभी आया नहीं बाहर। तब से लेकर आज तक, जब मेरी पहली फिल्म आमिर आई, मुझे याद है सोहेल भाई ने फ़ोन किया मुझे, मैं कहीं पर सेलिब्रेट कर रहा था, घर बुलाया, आई मेट सलीम अंकल, एंड आई एम लाइक आई वाज नोबडी, you know, for them, but they still made an effort to at least call me, and of course I met Salim uncle and he was equally kind. I think two very very kind people have I hear, and I think I can't ask for more. आपने तो रुला ही दिया था मुझे वहाँ बैठ के। So thank you so much. And yeah, so coming back to Fever, I hope you guys enjoyed the trailer. You know, a lot of effort has gone in, lot of people have been involved. बहुत सारे लोगों की मेहनत है। ये सिर्फ जो सामने आपके आगे खड़े होकर जो बातें करेंगे वही नहीं है, इसके पीछे पूरी टीम है। आपने विजुअल्स देखे होंगे, इतनी आसानी से शूट नहीं कर सकते थे इस फिल्म को। जो प्रोडक्शन टीम है, जो स्पॉट बॉयज़ हैं, जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, आई थिंक अगर उन लोगों का सपोर्ट नहीं होता तो ये फिल्म पुल ऑफ करना ही इम्पॉसिबल था। सो आई थिंक अ बिग थैंक्स एंड अ बिग कंग्रेचुलेशन टू द होल टीम फ्रॉम ऑल द डिपार्टमेंट्स, एंड हियर वी आर। सो बहुत जल्दी ये फिल्म आपके सामने आ जाएगी, एंड लेट्स सी हाउ यू रिएक्ट टू इट। बिल्कुल गौर, ऐसी फिल्में जो फास्ट पेस की होती हैं, जहाँ पे सस्पेंस होता था, थ्रिलर, क्या है कहानी का एकदम, अगर वन लाइनर बोलूँ तो क्या है ये? वन लाइनर से पहले मैं आपके सवाल का जवाब ज़रूर दूंगी, पर पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ आप सबका कि आप यहाँ आए। इट मीन्स अ लॉट टू ऑल ऑफ अस, बिकॉज अ फिल्म लाइक दिस, जैसे सोहेल ने बताया कि it really needs all your support, so thank you so much, I appreciate it. And I see the very talented Javed Jafri also with us, ladies and gentlemen. उनके लिए ज़ोरदार तालियां दे दीजिए, because thank you for your support, thank you for being here. And yeah, coming back to your question, एक लाइन में ऐसी फिल्म को आप बयां नहीं कर पाएंगे एक्चुअली, क्योंकि जैसे लिखा है बी सस्पेंस्ड, और सस्पेंस जहाँ पर आता है वहाँ पर काफ़ी एलिमेंट्स होते हैं, कैरेक्टर्स के काफ़ी शेड्स होते हैं। तो येस, देयर आर मेनी एलिमेंट्स, लेकिन आई थिंक बी सस्पेंस्ड इज द राइट वर्ड फॉर फीवर इफ आई हैव टू सम इट अप। राजीव, थ्रिल एक्स, ये क्या है? एक्स थ्रिल तो समझ में आता है, Exotic? नहीं, एक्स से बहुत सारी चीजें निकल के आती एक्साइटिंग, हैं, एक्साइटिंग, और भी कुछ निकलता है, एक्स फैक्टर, और भी कुछ निकलता है। एक्सीलेंट। यार आपको क्या लगा? मैं क्या बोलूं, मत बुलवाओ मेरे मुंह से यार। अब वो बाकी हम आपके इमेजिनेशन पे छोड़ देते हैं, बट दीज आर द टर्म्स वी थिंक ऑफ, क्योंकि जब थ्रिल एक्स की बात हुई, जैसे राजीव बता रहे थे कि इट्स अ थ्रिलर विद एन एक्स फैक्टर। अब वो एक्जॉटिक लोकेशंस हैं या एक्साइटमेंट है या यू नो जो हम कहना नहीं चाहते वो सब है। एक्चुअली एक्स बड़ा कमाल का है ना, आगे लगाओ तो कुछ और होता है, पीछे लगाओ तो
और भी एक्साइटिंग हो जाता है, तो आई थिंक या दिस इज नहीं, राजीव और 3 लड़कियां, तो मैंने सोचा शायद कुछ और होगा। गौर, ये फिल्म करने का क्या एक मेन रीजन क्या था? आपको क्या लगा कि ये फिल्म मुझे करनी ही चाहिए? That's a very good question actually. And I'm dying to say this क्योंकि जब मैंने इश्क ज़ादे की, रॉकेट सिंह की, गेम की, उस वक्त मुझे लोग पूछते थे कि आप लीड रोल्स क्यों नहीं कर रही हैं, और मैं हमेशा कहती थी मेरे हर इंटरव्यू में कि आई ओनली डू थिंग्स दैट एक्साइट मी, जहाँ पर रोल्स मुझे एक परफॉर्मेंस करने का, डिलीवर करने का एक स्कोप देते हैं। एंड थैंकफुली मुझे ऐसा एक लीड रोल मिला जहाँ पर परफॉर्मेंस करने का बहुत ज़्यादा स्कोप है, और वो क्या है वो आप फिल्म में देखेंगे। बट आई लाइक टू थैंक राजीव कि आपने मुझे ऐसा एक रोल दिया जहाँ पर एक लीड एक्ट्रेस को भी उतना ही ज़्यादा स्कोप मिल रहा है जितना कि एक लीड एक्टर को मिल रहा है टू परफॉर्म, नॉट जस्ट बी इन सॉन्ग्स एंड ऑल ऑफ दैट। सो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट। इसीलिए क्योंकि अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली जो भी है, जब लीड बोलते हैं तो लड़कियों को जिस तरह के क्वेश्चंस हमें पूछे जाते हैं कि आपके गाने कितने हैं या आप किसके ऑपोजिट हैं। मुझे हमेशा रॉकेट सिंह के हर इंटरव्यू में पूछा जाया करता था कि आप रणबीर कपूर के ऑपोजिट हैं। मैंने कहा ऑपोजिट नहीं हूँ, लेकिन फ्रेम 1 से फ्रेम एंड तक हूँ। सो दीज आर काइंड ऑफ द बैरिकेड्स दैट आई वांटेड टू ऑलवेज ब्रेक इन माय करियर, व्हिच अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव बीन लकी इनफ दैट आई हैव गॉट दोज अपॉर्चुनिटीज। And yes, my first lead role, I can very well say that it's given me a big scope to perform, and I'm thankful for that. Thank you so much. वेरी गुड। राजीव, वो एक्स फैक्टर के आगे बढ़ाता हूँ मैं थोड़ा सा। 3 हीरोइन और तुम्हारा एक्स फैक्टर मैंने देख लिया जो परफॉर्म कर रहे थे उधर। देख रहे बेटा, हमने देखा, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे आप। कैसा महसूस किया? उन्होंने या मैंने? अब तुम सामने हो तो तुमसे ही पूछ लेता हूँ। बुखार चढ़ गया था। Yeah, totally. I mean, कमाल के हैं। I mean, the script for me, I mean, जिसके बारे में बात करो, जो इंटीमेसी है, जो इंटीमेट मोमेंट्स हम लोगों को देखे हैं, वो ज़बरदस्ती नहीं डाले गए हैं। पार्ट ऑफ द स्टोरी लाइन है। हमने पहले दिन से ही हमें मालूम था कि किस बारे में फिल्म है। इनफैक्ट कभी ध्यान गया ही नहीं, मैंने कभी क्वेश्चन पूछा ही नहीं राजीव से, इसलिए नहीं कि वो लड़कियाँ बहुत हॉट हैं, इसलिए कि मुझे लगा ही नहीं कि इस तरह के सीक्वेंसेस हैं जो मतलब ज़बरदस्ती हैं या क्यों हैं यहाँ पे। I think all these sequences that you saw, is a very important part of storytelling. And yeah, Rajiv wants to add. एक्चुअली झूठ बोल रहे हैं। मैंने इनको कई बार बताया नहीं था कि अभी ये वाला सीन भी है। हाँ, एक्चुअली जेमा के साथ में पहले, मतलब वो उस टाइम पे नहीं था, बिकॉज द फिल्म की जो एडिट पैटर्न है वो आगे पीछे था, तो हम लोग शूट भी ऐसे कर रहे थे इसके अंदर। और एक जगह हम लोग कहीं, और जेमा से मैं पहली बार मिला था, एंड जेमा के बारे में ऑफकोर्स सब जानते थे, हम सब मालूम। पहली बार मिलने पर ही परफॉर्मेंस मेरे हाथ पर ठंडे पड़ गए थे जब राजी ने बोला कि अच्छा ये सड़क के बीच में खड़े हैं ना राजी, ना वी नीड अ वेरी नाइस इंटरेस्टिंग किस। सो आई रिमेंबर, या सो इट वाज, एंड ऑन हर पार्ट, मतलब वो जेमा, आई मीन दे आर वेरी प्रोफेशनल पीपल, आई थिंक ब्रिलियंट एटीट्यूड उनका होता है, एंड शी, आई थिंक शी मेड मी कंफर्टेबल, जबकि उल्टा होना चाहिए, शी रियली मेड मी कंफर्टेबल। उसके बाद बाय द एंड ऑफ द फिल्म मैं प्रो हो गया। I think Gaur also has something interesting. Also परफॉर्मेंस की दाद देनी चाहिए कि इन्हें तीनों लड़कियों के साथ अलग परफॉर्मेंस देनी थी। So I'm sure Rajiv, you will get an award for that कि तो तीनों डिफरेंट इमोशंस कैसे होते हैं वो आप मूवी में तो देखेंगे। सर प्लीज सर एक्सप्लेन कीजिए उसको। और प्रोड्यूसर सब बैठे हुए हैं यहाँ पे, इस फिल्म में बहुत सारे प्रोड्यूसर हैं, तो लास्ट जो चेक बाकी है उसको थोड़ा सा। क्या चीज़? अनुराग, मुझे लगा था कि ये सारे जो सवाल होते हैं जो दे पुश यू टू द कॉर्नर, इज डन वेरी वेल बाय द प्रेस। आप तो हमें वो स्कोप ही नहीं छोड़ रहे हैं। यू आर आस्किंग अस एवरीथिंग पॉसिबल। नहीं, पर इसीलिए पूछ रहा हूँ कि उनको मौका न दो ना यार, जो है यहीं निपटा लेते हैं ना हम लोग यार। क्यों? नहीं, अभी तो ग्रिलिंग सेशन शुरू होगा, मुझे मालूम है। बट हैविंग सेड दैट, आई थिंक ट्रेलर देखने के बाद में आपको ऐसा कहीं नहीं लगा होगा दैट द फिल्म इज एक्चुअली, I mean, these moments are dominating this trailer because फिल्म की स्टोरी इतनी कड़क है कि आप एक बार भी नहीं आपको लगेगा कि ज़बरदस्ती डाल। आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फिल्म, एंड आई होप यू ऑल्सो फाइंड इट इक्वली इंटरेस्टिंग। देखो यार, पूछने को तो मैं पूरी रात पूछ सकता हूँ, क्वेश्चन क्या है, फीवर से रिलेटेड है, लेकिन आप लोग भी अगर कोई पूछना चाहें। यहीं बैठी है, ये सवाल मत पूछो, बाद में बताऊंगा, टेलीफोनिक इंटरव्यू। मेरी बीवी नहीं, मेरे फादर इन लॉ भी बैठे हैं यहाँ पे। तो
खास वजह ये कि ये स्क्रिप्ट एक्साइट करती है मुझे, मुझे लगता है कि कुछ करने के लिए होगा, यू नो, देयर समथिंग। और बाकी सारी जो टिपिकल फिल्में हैं, मुझसे लगता है कि मुझसे कहीं ज़्यादा काबिल लोग कर रहे हैं, तो एक जॉनर है जो मुझे बहुत एक्साइट करता है हमेशा से, और मुझे लगता है कि मैं यू नो आई विल बी 100% इन देयर। और कभी डेलिबरेटली नहीं सोचा था मैंने कि मैं इस तरह की फिल्में करूँगा, बट जब स्क्रिप्ट आती हैं तो पता नहीं क्यों इस तरह की फिल्में, यू नो, आर द फिल्म्स दैट रियली एक्साइट मी। सो एज लॉन्ग एज आई एम डूइंग अ गुड जॉब, आई थिंक शुड नॉट बी। जी जी, मैं प्रोजेक्ट्स को देखता हूँ, मैं मीडियम को नहीं देखता हूँ। मुझे अगर प्रोजेक्ट एक्साइट करता है तो मैं वो प्रोजेक्ट ले लेता हूँ, चाहे वो टेलीविजन हो चाहे वो फिल्म्स हो। थिएटर में कुछ एक्साइट करेगा तो मैं वो भी करूँगा, बट आई थिंक मोस्टली आई पिक अप प्रोजेक्ट्स विच रियली एक्साइट मी। आई डोंट रियली लुक एट द मीडियम। तो अगर आप देखेंगे कि मैंने जो जितना भी काम किया है, कभी यहाँ कभी वहाँ, सो आई थिंक इट्स ऑल अबाउट द प्रोजेक्ट, इट्स हाउ मच यू रीच आउट टू पीपल। हमें कोई डर नहीं है, उन्होंने सब काम कर दिया हमारे लिए। He never kept me in suspense that way, by the way, you know. Yeah. But while shooting, I wasn't prepared for that sequence to come all of a sudden, you know, and that, I think on day one. So we knew it, and he had a certain pattern of shooting the film. So I wasn't really prepared for it then, but he never kept us under suspense. Or No, actually, add to that, and I don't want this mic. Thanks. I'd like to add to that कि जब मेरी पहली मीटिंग हुई थी आरजे, आई कॉल हिम आरजे क्योंकि सेट पे बड़ी कंफ्यूजन होती थी, राजीव, so I used to call him RJ. So RJ in the first meeting itself had told me कि देखो ये सीन है exactly स्क्रिप्ट से एक लाइन ज़्यादा नहीं, एक लाइन कम नहीं, ये रिक्वायरमेंट है, क्यों रिक्वायरमेंट है, और इसके अलावा आई विल नॉट बी एबल टू कास्ट, सो यू हैव टू बी कम्प्लीटली कंफर्टेबल विद दैट। एंड जैसे राजीव ने बताया कि फिल्म में ऐसा कोई भी एक भी आपको ऐसा सीन नज़र नहीं आएगा जो ज़बरदस्ती हाँ इफेक्ट के लिए डाल दिया गया हो। इट मेक्स सेंस टुवर्ड्स द एंड ऑल्सो, राइट एट द बिगिनिंग ऑल्सो, यू विल से अच्छा दैट इज़ वाई दिस हैपेंड। इनफैक्ट माई मॉम इज सिटिंग राइट हियर एंड जब मैंने स्क्रिप्ट नरेशन हुआ था मेरा, आई वेंट होम एंड आई टोल्ड मॉम, यू नो फाइनली एज एन एक्टर्स यू नो करियर में वो मौका आ गया है जब शायद मुझे ये करना पड़ेगा, द स्क्रिप्ट इज फैंटास्टिक। एंड माय मॉम सेड हाँ अगर स्क्रिप्ट में इट मेक्स सेंस एंड इट्स ओके विद यू टू परफॉर्म देन यू गो हेड एंड डू इट। हिम्मत नहीं बन रही थी टू सिट नेक्स्ट टू हर एंड वॉच इट, सो आई वेंट राइट एट द बैक टू वॉच द ट्रेलर, बट शी इज स्माइलिंग सो आई एम गेसिंग इट्स ओके। Maybe I can connect both the questions together. It's about the sex thing also that she's talking about. See, because when I wrote the script and I approached Gemma and approached Katrina, there is a very, like a detailed clarity when you speak to them. Like every moment is explained in the script. And they understand it and then it is performed because they kind of read the entire script in its entirety. And then they perform. So that's the clarity of that, why are we doing what we are doing. And maybe which also Rajiv will kind of back me on that, is that they are so you know, unself-conscious, there's a word, of so kind of selfless when they're performing, or when thing is going to happen, that it takes that sex away from it. It becomes a passionate moment rather than a sex scene, right? So it was, and similarly with Gohar, but also the point is that sometimes you don't need to say it. Like I remember this one particular scene, I will not go into detail, when Gohar is there, and yeah. So I had to, in between the take, because obviously I would have music on that kind of a thing. I just in between said, just go ahead, just go ahead, just, you know. But she trusts the script, so she goes ahead, you know. So that's the kind of trust that you have to have in the script and the person who's directing the film. Then it just becomes a part of the story. It doesn't kind of stand out as a sexual object, if I can call that. Yeah.
Thank you for asking. I think, yeah, that would is a kind of a thing that comes from the trailer. No, can I say that with a lot of humbleness that this is a complete original script, and that's why I had to really work hard because it's a difficult script to kind of comprehend and initially, but visually kind of it translates much easier. But no, it is not. It's completely original, and I had to keep that in mind because I was approaching people who are part of different Hollywood and European industry, and I don't want to cut a short. And also Switzerland. The entire film is backed by the Swiss government, the Valais, the Canton of Valais, which is entirely it was shot, and for the first time, perhaps after Yash Ji has kind of patented Switzerland. You know, for me to go again to Switzerland and get the backing from them to get the kind of visuals that I wanted to was a big thing for me. So the originality was very, very important because I cannot go to any international actor saying, "Look, honey, this is a kind of a inspired script." So it is completely original. और दूसरी बात ये कि स्विट्जरलैंड में गए नहीं हैं, ये पूरी कहानी स्विट्जरलैंड की ही है, तो मतलब ये नहीं कि चलो यार 2 गाने के लिए स्विट्जरलैंड होके आते हैं, Yeah, so ऐसा if I- कुछ नहीं है, correct. पूरी कहानी, पूरी स्टार कास्ट वहीं पर Correct. रहती है, वहीं सब है, इसलिए that- आई थिंक बहुत अच्छा विजुअल है. Correct. So there are characters who are Indians who live in Switzerland with Mr. Modi, whatever kind of backing expatriates. So it is these people live in Switzerland, and it's a story about Indians living in Switzerland. So nobody's kind of gone there to do a particular thing. छुट्टी पे चले जाता हूँ। ये बहुत छुट्टी पे जाते हैं। मुझे लगता है मेरी लाइफ सिर्फ यही नहीं है, मेरी लाइफ में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं उतना इन्जॉय करता हूँ जितना मैं अपना काम इन्जॉय करता हूँ, बट 100% वर्क मेरी लाइफ में नहीं है। कंपार्टमेंट्स इन माई लाइफ। तो मुझे लगता है जितना मैं कर सकता हूँ, जितना मुझे, और बीच में ऐसा नहीं है कि स्क्रिप्ट्स आती हैं बीच में एक्साइट नहीं करती, कभी कभी आप काम करते हो वर्कआउट नहीं हो पाती हैं, लॉट ऑफ रीजंस, मतलब सो बट देन मैं सिर्फ करने के लिए काम नहीं करता हूँ, मैं वेट करना प्रेफर करता हूँ, बट सिर्फ करने के लिए कुछ भी कर लो तो मैं वो नहीं कर पाता हूँ, बिकॉज इट्स नॉट दैट कि मैं जब नहीं कुछ करता हूँ तो मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ कि यार मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, इस समय गायब हो जाऊँगा, नज़रों से गायब हो जाऊँगा तो क्या होगा। इट डजंट रियली बॉदर मी। आई जब मैं नहीं दिखता हूँ आप तो सोच लिया करेंगे कहीं ना कहीं गोवा में घूम रहा होगा, लद्दाख में घूम रहा होगा, या कहीं अब्रॉड घूम रहा होगा। और कोई नहीं, मैं क्या बोलूँ, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं अपनी तरीके से चलता हूँ, वो ऑफकोर्स बहुत बड़े एक्टर हैं और उन अब जहाँ तक पहुँच गए हैं वो, आई थिंक वो उतना ही अफोर्ड भी कर पाते होंगे। ओके, लास्ट क्वेश्चन मेरी तरफ से आप दोनों पर। कोई क्वेश्चन पूछ नहीं रहा है? एनीवन? और किसी के पास कोई सब्जेक्ट, कोई बात? अच्छा, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, तो सब पूछ लेंगे यहाँ पे, सब फैमिली वाले ही हैं और क्या, सब मीडिया वाले हैं सब यहाँ पे। ओके राजू, एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ आपसे कि देखिए ऐसी फिल्में हमारे हिंदुस्तान में बहुत कम बनती हैं, जो थ्रिल होते हैं, स्पेस होता है जिसमें बहुत ज़्यादा होता है, उसके पीछे रीज़न क्या होता है? और दूसरी फिल्म साइन करने के पहले आपने बोला कि मैंने डायरेक्टर से बात की थी, तो एग्जैक्टली अगर 3 रीज़न बताएं कि फिल्म देखने के बाद क्या महसूस करेगी इंडियन पब्लिक? नहीं, सबसे पहले तो बहुत रिफ्रेश्ड महसूस करेंगे आप इस तरह की। मैं भी इस बात को काफ़ी गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इस तरह की स्टोरी टेलिंग आपने नहीं देखी होगी। दैट वाज वन रीज़न जो मैंने भी इस फिल्म को साइन किया था। दूसरी चीज़, आई थिंक जिस तरह से ये फिल्म शूट भी की गई है, विजुअली बहुत ही स्टनिंग फिल्म है। मुजाहिद हमारे जो डीओपी हैं, यहीं बैठे हैं कहीं पर, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। क्या बात है, ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए। सो बहुत ही स्टनिंग फिल्म है। एंड थर्ड थिंग, आई थिंक परफॉर्मेंसेज। सो इट्स नॉट दैट कि मैं लीड एक्टर हूँ, आई थिंक वी ऑल आर प्लेइंग कैरेक्टर्स, एंड सो देयर आर 4 कैरेक्टर्स इन द फिल्म, एंड इट्स जस्ट दैट कि इर्द गिर्द हम कि घूमती है कहानी, तो लगता है कि मैं लीडिंग मैन हूँ। आई थिंक ऑल ऑफ अस वी आर प्लेइंग कैरेक्टर्स, एंड वंडरफुल। यू विल सी एक्चुअली कि एक इटालियन एक्ट्रेस हैं, एक ब्रिटिश लड़की हैं, और हम लोग इंडिया से हैं, बट एट नो पॉइंट विल यू फील दैट बैरियर। आपको कहीं नहीं लगेगा कि यार ये बाहर की एक्ट्रेस आई हुई है। इट जस्ट वेरी सीमलेसली फॉल्स इन प्लेस, एंड सो आई थिंक ओवरऑल द पैकेज विल बी वेरी वेरी एक्साइटिंग। गाने बहुत अच्छे हैं फिल्म के, आपने अभी तो गाने सिर्फ एक ही सुना है, काफ़ी गाने हैं फिल्म के अंदर। या जो आपने गाना सुना अच्छा लगा ना, द लव सॉन्ग, टोनी कक्कर इज सिटिंग राइट हियर लेडीज एंड जेंटलमैन। टोनी कक्कर ने गाया है, उन्होंने कंपोज किया है, एक बार उनके लिए तालियां। टोनी प्लीज खड़े हो आई यार। थिंक दैट सॉन्ग इज गोइंग टू डू वंडरफुल। टोनी, आई एम श्योर द सॉन्ग इज गोइंग टू डू वंडरफुल। दैट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। 3 things that people will take home. One, I think they will go very heavy on emotions, क्योंकि ये फिल्म में एक काफ़ी सारे मैसेजेस हैं, लेकिन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज आई एम श्योर
after the last after the climax, people will take back some kind of an emotion with them for sure. Dusra performances, like Rajiv said, everyone's done brilliantly, and good music. The music is very, very, very good. We have a song by Arijit, right? And yeah, Sharmali. So a great soundtrack as well. Yeah. चलिए आई थिंक बेस्ट ऑफ लक, जोरदार ताली होनी चाहिए स्टार कास्ट के लिए. थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया. एंड मैं चाहूँगा जितने फोटोग्राफर हैं, ओहो क्या बात है. अरबाज भाई, सोहेल भाई, एक मिनट प्लीज़ स्टेज में आते हैं. जावेद सर. जावेद भाई प्लीज़ कम ऑन द स्टेज.